Class. In previous video we have studied the diversity in living organisms, and we have discussed so much and important points of living organisms, which type of process they acquire. We have also discussed the properties and important features of living beings, which is growth, development, okay, adaptations, special features, and how the living beings are generally formed. We have also studied the cell is the basic and structural functional unit of life, and group of cells make tissue. Tissue is also important, plays an important role in human beings, because there is a several types of tissues are found in organisms, whether it is male, female, and animals also, and plants also. And group of tissue form organ, and group organs are generally make organ system is generally, we know that organs means हमारे जो भी organs important organs होते हैं, hand limbs, ठीक है, फोर लिम्स, हार्ट, किडनीज वगैरह, एंड ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स आर जनरली फॉर्म टू कंबाइन ऑर्गेनिज्म, एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म देने के लिए जो भी हम प्रोसेस जानते हैं, दिस इज कॉल्ड organization. And after that we have to also we have to discuss about the important topic of classification. I will take a very short time to revise all the previous topic. Classification we have studied, because one organisms are found in most of the world, and we have to classify it. After that we have to provide the better group, and after providing the better group we have to give some specific name, okay, to identify in future. हम अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे पहले हम क्लासिफाई करें, क्लासिफाई करने के बाद वी हैव टू प्रोवाइड अ प्रॉपर ग्रुप, उसे एक प्रॉपर ग्रुप दे, देन वी हैव टू गिव द नेम ऑफ अकॉर्डिंग टू स्पीसीज एंड जीनस. वी विल आल्सो डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. उनका जो नाम है वो उनके स्पीसीज और जीनस के ऊपर रखा जाए, ताकि इन फ्यूचर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड द ह्यूमन बींग्स कैन नॉट गेट कंफ्यूज्ड टू आइडेंटिफाई. ह्यूमन बींग्स कभी भी उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज नहीं होंगे. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंड दिस इज the classification. We know that the first time your classification was given by Aristotle, but several confusion there, and after that Carolus Linnaeus, the great scientist, had given the clear and exact definition regarding the classification. Firstly, why classification is needed? Yesterday I told you that classification is the basic unit. We have to classify all the organisms all over the world to प्रॉपर वीइंग एंड आइडेंटिफाई. ठीक है, क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इस दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं तो काफी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर इट इज प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, मैंने वो भी बताया कौन कितने प्रकार के पाए जाते हैं. तो इनको क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में रखना, ताकि हम उनको इजीली डिफाइन कर सके कि कौन सा एनिमल्स किस ग्रुप का है, कौन सा प्लांट्स किस ग्रुप का है, कौन सी ह्यूमन बींग्स किस ग्रुप के हैं. ठीक है, तो ये सारा चीज जो है क्लियर करता है क्लासिफिकेशन से. एंड द क्लासिफिकेशन स्टेटमेंट वाज गिवन बाय Aristotle, and he was the well and renowned scientist. Okay, that's why his theory was most important, we have to adopt. After that the classification is totally based on 2 points according to their cell structure. The first is prokaryote and second is eukaryote. We already studied about that. Prokaryotes means a cells which is made up of primitive types and there is a absence of nucleus. Okay, हमने ऐसा cells पढ़ा है जो काफी primitive होते हैं, काफी पुराने होते हैं, जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, जिसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं. एंड सेकंड यूकैरियोट, ये हमारे प्रोकैरियोट के ही सेल्स को कैरी करके आगे की तरफ फॉलो करते हैं. यूकैरियोट्स मींस ये ट्रू न्यूक्लियस को कैरी करते हैं, बट इन प्रोकैरियोट्स देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, और ये क्या करते हैं, प्रोकैरियोट से ही अपने सेल्स को आगे लेकर फॉलो करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द पॉइंट इज दैट after the prokaryotes and eukaryotes, the well labeled nucleus found in that, and there is absence of nucleus. इनमें न्यूक्लियस होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड होते हैं, मैंने आपको वो भी बताया था इससे पहले के वीडियो में. नाउ टुडे we are going to discuss the types of prokaryotes and eukaryotes also, and one by one we will see and we will discuss all the important and essential topics. So first we have to discuss that what is the meaning of prokaryotes. We have to
just know about the prokaryotes. Prokaryotes means pro means primitive and karyotes means nucleus. Okay, pro means primitive and karyon means nucleus. प्रो यानी इनमें बहुत पुराना न्यूक्लियस होता है, बट न्यूक्लियस एडजेक्ट या ट्रू फॉर्म में नहीं होता है, अब्सेंस होते हैं न्यूक्लियस इनमें, ठीक है। और ये कैरियोट्स मतलब जो कैरियन जो है ये ग्रीक वर्ड से निकल कर है, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू ग्रीक मीन्स इट इज अ लैटिन एंड डेड वर्ड विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जनरली प्रोकैरियोट्स आर बेस्ड ऑन टू टाइप्स। प्रोकैरियोट्स के भी दो टाइप्स हैं, जैसे एक है यूनिसेलुलर, और अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर का, तो यूनिसेलुलर के साथ साथ आपके हैं मोनेरास, ठीक है। जो मोनेरास हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है विच आर फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इट इज अ वेरी rare species, okay, and you will see the moneras are the found in omnipresent. Omnipresent मतलब हर एक जगह मोनेरास होते हैं, and they are single in structure, simple and single cell wall, ठीक है। सारा चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। and now next we are going to discuss the prokaryotes. prokaryotes हमने देखा, it is divided into unicellular. unicellular means those organisms which are made up of single cell is called unicellular, हम उनको unicellular कहते हैं, and those organisms which are made up of more than two cells is called multicellular, और ऐसे organisms जो दो से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उसे हम multicellular organisms कहते हैं। So here eukaryotes are divided into two parts. The first is unicellular also and second is multicellular, okay। Now the unicellular is divided into protista. The most important point is that unicellular is further, the protista is the best example of unicellular because all the protistans are found as a single form, okay। जितने भी प्रोटिस्टास होते हैं वो सिंगल फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो मल्टीसेलर है वो मल्टी सेल्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मल्टीसेलर। सो मल्टीसेलर्स को भी फर्दर फिर क्लासिफाइड किया गया है, और मल्टीसेलर को क्लासिफाई करने के लिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। द टू पार्ट्स आर विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। एक के साथ सेल वॉल होते हैं एंड सेल वॉल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेल वॉल का मतलब होता है जैसे ये हमारा सेल है तो इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जो आउटर स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल होता है, and cell wall plays an important role of protection against the cell। जो भी सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है, हमारा न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, इन सारी की सारी चीजों को प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड बेटर ऑप्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है जो बाहर से आने वाले किसी भी प्रकार के एजेंट से उनकी रक्षा करते हैं। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आफ्टर द सेल वॉल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनमें सेल वॉल होते हैं और कुछ में सेल वॉल नहीं होते हैं। एंड इफ विद सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो विद सेल वॉल में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस को फॉलो करते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? वी नो दैट अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच those organisms are able to prepare their food by own self by using sunlight। photo means light, photosynthesis, ठीक है। सनलाइट की रोशनी से या है ना अपना खाना जो है खुद से प्रिपेयर करते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द वर्ल्ड who cannot perform the basic function of photosynthesis, okay। now first we are going to discuss that विथ सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो विथ सेल वॉल के हिसाब से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस को फॉलो नहीं करते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच आर अनेबल टू परफॉर्म एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड नॉट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं या कैपेबल नहीं होते हैं बनाने को, दे यूज्ड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन इजिली मेक देयर फूड टू ईट, okay। those organisms which can prepare their food own self is called autotrophic, and those organisms which are totally dependent on other
इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। जैसे ह्यूमन बींग्स ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि वो अपने खाने के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। बट प्लांट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो प्लांट्स हैं वो एयर, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों को फूड के रिसोर्सेस में काम में लेते हैं और उसके बाद वो अपना खाना खुद परफॉर्म करते हैं। सो we have discussed the fungi. We also know that the importance and what is the role of fungi. Fungi is a generally do not perform photosynthesis. फंजाई यूज टू टेक फूड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज। फंजाई अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये अपने खाने के लिए जनरली दूसरे ऑर्गेनिज के ऊपर डिपेंड होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द important organisms also there who perform photosynthesis and this is called plantae, monera, fungi, ये सब अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। इसमें जो प्लांटे है वो प्लांटी के फॉर्म्स में जाना जाता है, जिसको हम ये फोटोसिंथेसिस को फॉलो करते हैं, इसको हम प्लांट के नाम से जानते हैं। लेकिन इनका जो ग्रुप क्लासिफिकेशन था वो धीरे धीरे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो होते हैं दे आर कैपेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेटिक, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट some of the organisms they are absent of cell wall and I am taking an example of animal। ठीक है, एनिमल इज अ जनरली कंसीडर्ड एट एनिमेलिया ग्रुप। एनिमेलिया एनिमल्स के लिए एनिमेलिया ग्रुप बना है और प्लांट्स के लिए प्लांटी बना है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हैं। एनिमेलिया की बात करते हैं तो देयर इज अ सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आल्सो, जिनमें सेल वॉल जो है विदाउट यानी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इनमें सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, वो काम करते हैं ऑस्मोसिस का और सेमी परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन का, मतलब किसी भी चीज को बॉडी के अंदर आना और किसी भी चीज को बॉडी के बाहर जाने में ये उनको कैपेबल बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट, after the classification we know that classification of life forms will be closely related to their evolution। जो हमने क्लासिफिकेशन देखा अभी तक या जो हमने पढ़ा वो क्लासिफिकेशन अपने इवोल्यूशन से, जो भी इनका पुराना सिस्टम था ये उससे इन्वॉल्व होकर आए हैं। जैसे यूकैरियोट्स, यहाँ पे जो यूकैरियोट्स है जिनके पास सेल नहीं थे, यूकैरियोट्स इनको लेकर मल्टीफॉर्म में बनाए और उसके बाद सेल्स को कैरी किए, यानी न्यूक्लियस को कैरी किए, ये इन्हीं के फॉर्म से तैयार हुए हैं। यूनिसेलुलर के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीसेलुलर होता है। इसका मतलब कुछ उसके जो एक्स्ट्रा एक्सेप्ट होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं सेल्स वगैरह, वो सब अपने पुराने या प्री एग्जिस्टिंग सेल से लेते हैं। ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द सेल थ्योरी, ओके, विच इज गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब जो भी उनकी हेरिडिटरी या जेनेटिक ऑर्डर्स हैं ये उनसे प्री डेवलप्ड होके उनको आगे की तरफ लेकर जाते हैं, इवोल्यूशन को फॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वी नो दैट चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडियाज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है द चेंजेस ऑफ वेरिएशन एंड चेंजेस ऑफ देयर सिस्टम वन बाय वन एंड जनरेशन बाय जनरेशन of their genetic and hereditary material is called evolution। evolution का मतलब होता है उनमें जो भी चेंजेस होते हैं उनकी हेरिडिटरी और जेनेटिक मटेरियल्स को देखते हुए होते हैं और उनके स्पीसीज जो है डे बाय डे, जनरेशन बाय जनरेशन चेंजेस होते जाते हैं, उनमें इवोल्यूशन आता है एंड दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन टर्म वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन and he has also written one of the book the name of the origin of species। इन्होंने एक origin of species के नाम से इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी है। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि पहले जो इंसान थे, ठीक है, वो बहुत छोटे होते थे, ठीक है, लुक्स लाइक एन ऐप, धीरे धीरे उनमें प्रोग्रेस आता गया, थोड़े से बड़े हुए, देन और उससे बड़े, है ना, फिर उसके बाद उनमें कुछ हेयर से उनके पूरे बॉडी पार्ट्स में वो डेवलप होते होते धीरे धीरे हेयर्स जो थे वो रिमूव होते गए एंड आफ्टर द प्री मैच्योर ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन्ड, उसके बाद हमें एक पूरा का पूरा एक ह्यूमन बींग्स देखने को मिला। सो दीज ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ योर डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स। इन नेक्स्ट वीडियो we will continue the remaining part. Till then, keep revises. Okay, thank you, student.